السلام علیکم۔ بزم مرثیہ کی جانب سے پچھلے کئی سال سے مسلسل پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اس کے بانی جناب علی انوار زیدی صاحب مرحوم تھے اور ماشاءاللہ ان کی کاوشوں سے عشرہ تحت اللفظ مجالس کا بدستور جاری ہے۔ علی انوار زیدی صاحب کے انتقال کے بعد جناب سراج مہدی صاحب ریٹائرڈ گروپ کیپٹن ہمارے بیچ موجود ہیں۔ اس بزم مرثیہ کی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور یہ ترتیب جو دی گئی ہے یہ انہی نے دی ہے۔ ہمارے لیے آج ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس بزم مرثیہ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مشہور و معروف شاعر جناب شکیل حسن شمسی صاحب جو انقلاب اردو کے ایڈیٹر بھی ہیں اور اردو ادب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ شکیل شمسی صاحب کا گھرانہ کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جو محتاج تعارف ہو۔ ہم نے جناب ساغر خیامی صاحب کو دیکھا ہے، مہدی نظمی صاحب کو سنا ہے اور ناظر خیامی صاحب، جناب فضل حسینی صاحب اور تمام شعراء کرام اور پورا خاندان میں ایک نہیں، سارے جتنے بھی ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کر شعراء کرام رہے ہیں اور دین اور ادب اور مرثیہ کی خدمات میں یہ خانوادہ سب سے آگے رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کی خاصیت ایک یہ ہے کہ اس بزم مرثیہ میں جو شکیل شمسی صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں وہ ان کا خود لکھا ہوا ہے، اس کے مصنف وہ خود ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ لکھنؤ کی سرزمین سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ میر انیس، مرزا دبیر اور مہذب لکھنوی صاحب کو تو میں نے بھی سنا، ایک سلسلہ پورا ہے، خود لکھتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ اس کڑی میں آج ہمارے درمیان فخر کی بات ہے کہ انہوں نے خود مرثیہ لکھا ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سارے جہاں میں امن کی تصویر تھے کبھی، یہ مرثیہ ہے حضرت علی اکبر السلام کے سلسلے سے شکیل شمسی صاحب کا رہا اور اس میں جو ایصال ثواب ہے یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھی یہ بات، جو پتہ لگی کچھ وقت پہلے کہ شکیل شمسی صاحب کے سسر صاحب جناب کوکب قدر صاحب کا سلسلہ اس خاندان سے ہے کہ جس کی بدولت ہندوستان میں عباداری آج عروج پر ہے۔ جناب کوکب قدر صاحب آپ کے سسر صاحب تھے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں اہم عہدے پر رہے اور سلسلہ ان کا کوکب قدر صاحب کے والد صاحب مہر قدر صاحب، ان کے والد جناب برجیز قدر صاحب، جناب انجم قدر صاحب کا نام سبھی نے سن رکھا ہے۔ برجیز قدر صاحب خود بھی 11 مہینے نواب رہے اودھ کے اور ان کی والدہ بیگم حضرت محل اور والد جناب واجد علی شاہ صاحب عز اللہ مقام، جنہوں نے لکھنؤ کے بعد میں کلکتے میں بھی وہی راس و رسم عباداری کی باقی رکھی۔ نوابین اودھ سے تعلق عباداری یوں تو جناب فاطمہ زہرا کی تمنا ہوتی، لیکن جس شکل میں ہندوستان میں ہے 10 محرم اور 20 صفر اور 8 ربیع الاول تک وہی تازیہ داری نہ صرف شیعوں میں بلکہ اہل سنت میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، بودھوں میں، سب میں یہ نوابین اودھ کی دین ہے۔ آصف الدولہ، کون بھائی امباڑہ، شاہ نجف، عباداری جو آج ہمارے بیچ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو بھی ہے وہ نوابین اودھ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو عباداری شکل میں نہ ہوتی، یہ میرا ماننا ہے۔ تو ایک طرف جناب کوکب قدر صاحب کی
इस आले सवाब की मजलिस है। दूसरी तरफ हम उनको पुरसा भी दे रहे हैं शकील शमसी साहब को, और दूसरा ये है कि मरसिया उन्होंने खुद लिखा पढ़ रहे हैं। हर तरीके से आज की इस मजलिस को आप समझिए कि हमारे यहाँ की तारीखी मजलिस है, और इसमें चार चांद जब और लग गए जब हमारे दरमियान नक्कन साहब के खानदान से मुताल्लिक उनके सिलसिले में जनाब तकी नकवी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि अभी अंजुम जाफरी साहब ने इतना बढ़िया मरसिया, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इन सब की बुलंदी के लिए दर्जात के सलावात भेज दीजिए, और मैं शकील शमसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। बाबा से बुलंदार एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के कौकब कद्र सज्जाद अली मिर्ज़ा इब्ने मेहर कद्र जाहिद अली मिर्ज़ा के नाम बख्शने की ज़हमत। फातिहा। हज़रत, मरसिया कहना बहुत मुश्किल काम है, और मैंने ये हिम्मत की मरहूम अली अनवार साहब गुज़श्ता साल और हमारे सिराज मेहदी साहब, इन्हीं ने कहा कि मरसिया पढ़िए, तो मैंने कहा मैं अपना ही कहा हुआ मरसिया पढ़ूंगा, दूसरे का नहीं। जब तैतुल्लाह की बात हुई तो चलती रही और लगा कि मरसिया हो रहा है। और मुझे याद आता है कि जब भी जुमे में मुलाकात होती थी हमारे मरहूम अनवार भाई से, तो वो मुझसे कहते थे यार किस पर कह रहे हो तुम? तो मैंने कहा मैं हज़रत अली अकबर के हाल का मरसिया। तो कहते थे रजत जरूर कहना, देखो रजत जरूर कहना। तो बहरहाल सवाल उनको भी पहुंचेगा, क्योंकि इन लोगों दोनों की तरगीब थी, वरना मैं शायद मरसिया नहीं कहता, क्योंकि मरसिया कहना बहुत मुश्किल काम है। मरसिया कहना एक आम शायर के बस की बात नहीं है। और आम क्या, बहुत बड़े शायर ने गालिब से जब क़िबला काबा सैयद मोहम्मद साहब ने फरमाइश की कि तुम मरसिया कहो, तो गालिब ने सिर्फ 3 बंद कहे थे, और उसके बाद गालिब ने यह कहा कि ये मेरा मैदान नहीं है, ये मीर अनीस का मैदान है। बहरहाल मैं तो खाके पाए मीर अनीस और मिर्जा नबील उन्हीं के गलियों से जवान हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी कुछ कह सका। मुझे शायद मैं कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये तो आप फैसला करेंगे, लेकिन मैंने तो बतौर सवाब ये कहा है कि मेरी मग़फ़िरत का बायस बने। अगर मौला पसंद करें तो बेहतर है। एक नारे सलवार। यहाँ जो चेहरे में जो मैंने नज़्म किया है वो हालात हैं जो मुसलमान जिस हालात से गुजर रहे हैं, और इस तरीके का अर्ज करता हूँ कि जुल्मों सितम के सामने शमशीर थे कभी, सारे जहां में अमन की तस्वीर थे कभी, हम ही जबीने वक्त पे तहरीर थे कभी, हम ही जबीने वक्त पे तहरीर थे कभी, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ की तफसीर थे कभी, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ की तफसीर थे कभी, और जिनकी समझ में आया न मतलब जिहाद का, वो बन गए जमीन पे बायस फसाद का। जिनकी समझ में आया न मतलब जिहाद का, वो बन गए जमीन पे बायस फसाद का। अर्ज करता हूं कि पशमुर्दा आसमानों को ताजा हयात दी, सोए हुए जहां को नई कायनात दी, सूखी हुई जमीनों को नहरे फुरात दी, हमने ही खून की धार से खंजर को मात दी। पशमुर्दा आसमानों को ताजा हयात दी, सोए हुए जहां को नई कायनात दी, सूखी हुई जमीनों को नहरे फुरात दी, हमने ही खून की धार से खंजर को मात दी,
साबित ये कर चुकी है हमारे लहू की धार, तेगों को काट सकती है खूने गुलू की धार। साबित ये कर चुकी है हमारे लहू की धार, तेगों को काट सकती है खूने गुलू की। अर्ज करता हूं कि महकूमों को, गुलामों को आजाद करते थे, हर कसरे जबरो जोर को बर्बाद करते थे। ऐसे रसूल पाक को हम शाद करते थे, सहराओं को अजानों से आबाद करते थे। सहराओं को अजानों से आबाद करते थे। अब बेकस पे बेगुनाह पे हमला नहीं किया, हमने किसी के बच्चों को अगवा नहीं किया। बेकस पे बेगुनाह पे हमला नहीं किया, हमने किसी के बच्चों को अगवा नहीं किया। अपनी सफों में ऐसे मुजाहिद थे, मर्द थे, सीनों में जिनके सारे जमाने के दर्द थे। शाहों से शहरियारों से महवे नबर्द थे, किरदार और अमल में वो यकता थे, फर्द थे। किरदार और अमल में वो यकता थे, फर्द थे। वो खुशबू बदन की आती थी महफिल में दूर से, पेशानियां चमकती थी सजदों के नूर से। खुशबू बदन की आती थी महफिल में दूर से, पेशानियां चमकती थी सजदों के नूर से। चलते थे लेके तेज हवा में भी वो चिराग, चलते थे लेके तेज हवा में भी वो चिराग। दिल थे बहुत कुशादा, थे रोशन बहुत दिमाग, उजड़ा ना उनके हाथों से गुलशन न कोई बाग। दामन पे दीन के कभी लगने दिया न दाग, दामन पे दीन के कभी लगने दिया न दाग। बैत मुरादा फरमाए कि गोशा नशीन हो गए जब दर्दमंद लोग, गोशा नशीन हो गए जब दर्दमंद लोग, घुस आए अपने दीन में दहशत पसंद लोग। गोशा नशीन हो गए जब दर्दमंद लोग, घुस आए अपने दीन में दहशत पसंद लोग। माना है सब पे तंग बहुत आज आसमां, माना बहुत से लोग हैं बेनाम बेनिशान, माना लहू का दरिया हर एक सिमत है रवां, माना है जुल्म जौर की जानिब से सख्तियां। बदला चुका रहे हो निहत्तों से किस लिए, ये इंतकाम औरतों बच्चों से किस लिए। बदला चुका रहे हो निहत्तों से किस लिए, ये इंतकाम औरतों बच्चों से किस लिए। और मुलाजा फरमाइए बंद यहां से कि समझाए उनको कोई मसावात का शियार, फैला रहे हैं आज जो दुनिया में इंतशार। जिनके सितम का कितने ही मजलूम है शिकार, जो कर रहे हैं दामने इस्लाम दागदार, जो कर रहे हैं दामने इस्लाम दागदार। कोई उन्हें बताए ये रहमत का दीन है, इंसान दोस्ती का मोहब्बत का दीन है, इंसान दोस्ती का मोहब्बत का दीन है। और रोशन किया है ज़ैनब व कुलसूम ने इसे, इंसान दोस्ती का मोहब्बत का दीन है कि रोशन किया है ज़ैनब व कुलसूम ने इसे। हंसना सिखाया असग़र मासूम ने इसे, सेहत अता की आबिद मग़मूम ने इसे, सेहत अता की आबिद मग़मूम ने इसे, सर अपना दे दिया शह मज़लूम ने इसे। ये कूफियों का दीन है ना अहले शाम का, ये कूफियों का दीन है ना अहले शाम का, ये दीन है हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये कूफियों का रोशन किया है ज़ैनब व कुलसूम ने इसे, असरा सिखाया असग़र मासूम ने इसे, सेहत अता की आबिद मग़मूम ने इसे, सर अपना दे दिया शाह मज़लूम ने इसे। ये कूफियों का दीन है ना अहले शाम का, ये दीन है हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये दीन जो हुसैन के दम से ही बच सका, ये दीन जिसका काम है इंसान की बका, ये दीन जो हुसैन के दम से ही बच सका, ये दीन जिसका काम है इंसान की बका, ये दीन जिसका लाजमी हिस्सा है करबला,
یہ دین جس کا لازمی حصہ ہے کربلا، یہ دین حق جو دیتا ہے اب بھی یہی صدا، یہ دین حق جو دیتا ہے اب بھی یہی صدا، آلات حرب و ضرب نہ جنگی فنون سے، اسلام سرخرو ہے شہیدوں کے خون سے۔ یہ دین حق جو دیتا ہے اب بھی یہی صدا، آلات حرب و ضرب نہ جنگی فنون سے، اسلام سرخرو ہے شہیدوں کے خون سے۔ سردار ان شہیدوں کا ہے شاہ کربلا، وہ شاہ کربلا کہ لٹا جس کا قافلہ، جو 6 برس رسول کی آغوش میں پلا، اسلام اس شہید کے ہمراہ ہی چلا، جو 6 برس رسول کی آغوش میں پلا، اسلام اس شہید کے ہمراہ ہی چلا۔ بیعت ملازہ فرمائیں کہ ٹکرا گیا جو رنگ میں یزیدی جنون سے، ٹکرا گیا جو رنگ میں یزیدی جنون سے، قرآن جو پڑھ رہا تھا سینہ پر سکون سے، ٹکرا گیا جو رنگ میں یزیدی جنون سے، قرآن جو پڑھ رہا تھا سینہ پر سکون سے۔ بخشا ہے اس شہید نے فرش ادا ہمیں، بخشا ہے اس شہید نے فرش ادا ہمیں، یہ تذکرے، یہ مرثیہ خانے کی مجلسیں، دنیا کے طول و عرض میں ماتم کی رونقیں، اور اس کو دعائیں دیتی ہیں اب تک کی مسجدیں، اس کو دعائیں دیتی ہیں اب تک کی مسجدیں، جس نے کلاه کھینچی سرے پر غرور سے، روشن امام باڑے ہیں سب جس کے نور سے، جس نے کلاه کھینچی سرے پر غرور سے، روشن امام باڑے ہیں سب جس کے نور سے۔ مظلومیت پرستوں کے لب پر ہے جس کا نام، اس کے ہی ذکر کے لیے یکجا ہے خاص و عام، سردار ہے شہیدوں کا وہ تیسرا امام، اس کی ہی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے اہتمام، قرآن کی آیتیں بھی ہیں ذکر رسول ہے، یہ مجلس حسین کا پہلا اصول ہے، یہ مجلس حسین کا پہلا اصول ہے۔ ملازہ فرمائے کہ ہوتا یہاں ہے پہلے پیغمبر کا تذکرہ، اور اس کے بعد فاتح خیبر کا تذکرہ، زہرا کا ذکر ہوتا ہے شبر کا تذکرہ، سرور کے ساتھ ساتھ 72 کا تذکرہ، ہوتا یہاں ہے پہلے پیغمبر کا تذکرہ اور اس کے بعد فاتح خیبر کا تذکرہ، زہرا کا ذکر ہوتا ہے شبر کا تذکرہ، سرور کے ساتھ ساتھ 72 کا تذکرہ، الفاظ سب مہکتے ہیں مدحت کے عود سے، الفاظ سب مہکتے ہیں مدحت کے عود سے، یہ بزم گونجتی ہے صدائے درود سے۔ الفاظ سب مہکتے ہیں مدحت کے عود سے، یہ بزم گونجتی ہے صدائے درود سے۔ آؤ پھر آج اہل پیغمبر کی بات ہو، معصوم جس میں رہتے ہیں اس گھر کی بات ہو، جو آج تک بلند ہے اس سر کی بات ہو، جو آج تک بلند ہے اس سر کی بات ہو، اور ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کی بات ہو، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کی بات ہو، کہتی ہے یہ اذاں میرے محسن کی بات کر، کہتی ہے یہ اذاں میرے محسن کی بات کر، بس آج کربلا کے مؤذن کی بات کر، بس آج کربلا کے مؤذن کی بات کر۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہاں وہ کہ جو سمیٹے ہیں اوصاف پنجتن، جس کی نبی سی شکل علی جیسا ہے بدن، دل فاطمہ کا ساتھ میں ہے اسوہ حسن، خون حسین جس کی رگوں میں ہے موزن، خون حسین جس کی رگوں میں ہے موزن، لہجے میں ہے حسین کی ہمشیر کی مہک، لپٹی ہوئی ہے جسم سے تطہیر کی مہک، لپٹی ہوئی ہے جسم سے تطہیر کی مہک۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ عاشور کی وہ شب، علی اکبر کا وہ جمال، بے تاب ہے فلک سے اترنے کو خود ہلال،
اپنے رسول جیسی عطا کر کے چال ڈھال، نازا ہے اپنے آپ پہ خود رب ذوالجلال۔ اپنے رسول جیسی عطا کر کے چال ڈھال، نازا ہے اپنے آپ پہ خود رب ذوالجلال۔ اور جنوں ملک زمین پہ آنکھیں بچھائے ہیں، جنت سے دیکھنے انہیں یوسف بھی آئے ہیں۔ جنوں ملک زمین پہ عاشور کی وہ شب، علی اکبر کا وہ جمال، بےتاب ہے ملک فلک سے اترنے کو خود ہلال۔ اپنے رسول جیسی عطا کر کے چال ڈھال، نازا ہے اپنے آپ پہ خود رب ذوالجلال۔ جنوں ملک زمین پہ آنکھیں بچھائے ہیں، جنت سے دیکھنے انہیں یوسف بھی آئے ہیں۔ اور اکبر کی زلف ماں نے سنواری تمام رات، زینب نے بھی نظر ہے اتاری تمام رات۔ اکبر پہ ایسا جوش تھا تاری تمام رات، مرنے کی آرزو میں گزاری تمام رات۔ وقت نماز آیا فرشتوں کے پر کھلے، وقت نماز آیا فرشتوں کے پر کھلے، اکبر نے دی اذان تو جنت کے در کھلے۔ اکبر نے دی اذان تو جنت کے در کھلے۔ اور ملاحظہ فرمائی کا کربلا کی فجر کی نماز کہ ایسی کبھی ہوئی کہ نہ ہوگی کبھی نماز، تیمم زمین پہ کر کے سبھی نے پڑھی نماز۔ اکبر کے واسطے ہے اہم آج کی نماز، یہ اقتدا میں باپ کی ہے آخری نماز، یہ اقتدا میں باپ کی ہے آخری نماز۔ موجود ہے عزیز اور احباب فجر میں، لیکن حسین ہوں گے اکیلے ہی عصر میں، لیکن حسین ہوں گے اکیلے ہی عصر میں۔ محو نماز آ کے یوں چھوٹے بڑے ہوئے، جیسے کہ ایک ہار میں موتی جڑے ہوئے۔ محو نماز آ کے یوں چھوٹے بڑے ہوئے، جیسے کہ ایک ہار میں موتی جڑے ہوئے۔ قاسم کے ساتھ اون و محمد کھڑے ہوئے، عابد مگر ہے خیمے میں غش میں پڑے ہوئے، عابد مگر ہے خیمے میں غش میں پڑے ہوئے۔ اکبر اٹھے یہ کہہ کے اقامت کے واسطے، کوئی بچے تو گھر میں امامت کے واسطے۔ اکبر اٹھے یہ کہہ کے اقامت کے واسطے، کوئی بچے تو گھر میں امامت کے واسطے۔ اور منظر کہاں تھا ایسا کبھی زیر آسماں، منظر کہاں تھا ایسا کبھی زیر آسماں۔ آگے حسین پیچھے ہے سب پیر اور جوان، کرب و بلا میں اتری ہو جیسے کہ کہکشاں۔ محو نماز خیمے کے اندر ہے بیویاں، محو نماز خیمے کے اندر ہے بیویاں۔ دیکھا تھا جو زمانے نے بدر و حنین میں، وہ نور کا وفور ہے فوج حسین میں۔ دیکھا تھا جو زمانے نے بدر و حنین میں، وہ نور کا وفور ہے فوج حسین میں۔ اور اس نور نے ہی رکھ دیا ہر کو جھنجھوڑ کر، اس نور نے ہی رکھ دیا ہر کو جھنجھوڑ کر۔ وہ چل پڑا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر، اہل ستم سے اپنے روابط کو توڑ کر، رشتہ ہر ایک دولت دنیا سے موڑ کر۔ جب ہر چلا تو فوج میں ایک شور مچ گیا، جب ہر چلا تو فوج میں ایک شور مچ گیا، لیکن وہ خوش تھا آتش دوزخ سے بچ گیا۔ جب وہ چلا تو فوج میں ایک شور مچ گیا، لیکن وہ خوش تھا آتش دوزخ سے بچ گیا۔ پل میں پلے صراط سے ہر پار ہو گیا، پل میں پلے صراط سے ہر پار ہو گیا۔ آیا ادھر تو صاحب کردار ہو گیا، آیا ادھر تو صاحب کردار ہو گیا۔ رومال فاطمہ کا وہ حقدار ہو گیا، پہلے وہ خالی ہاتھ کا زردار ہو گیا۔ رومال فاطمہ کا وہ حقدار ہو گیا، پہلے وہ خالی ہاتھ کا زردار ہو گیا۔ اور بیت میں اللہ فرمائے کہ حر نے امیر شام کی ذلت مزید کی، حر نے امیر شام کی ذلت مزید کی، میدان میں آ کے توڑ دی بیعت یزید کی، میدان میں آ کے توڑ دی بیعت یزید کی۔ اور کہ پہلے اب یہاں سے ملاحظہ فرمائے کہ پہلے نثار ہو گئے انصار و اقربا، جب ہو گیا شروع عزیزوں کا سلسلہ، ہتھیار سچ کے جسم پہ آیا وہ محلقہ، اور سر جھکا کے حضرت شبیر سے کہا
बाबा अब अपने लाल को इज़्ने जिहाद दे, ऐसी करूं मैं जंग मलाइक भी दाद दे, ऐसी करूं मैं जंग मलाइक भी दाद दे, और इज़्ने जिहाद शह ने दिया नूरे ऐन को, घोड़े पे खुद सवार किया दिल के चैन को, इतनी सी आरज़ू थी शहे मशरक़ैन को, मुड़ मुड़ के देखता रहे बेटा हुसैन को, इतनी सी आरज़ू थी, इतनी सी आरज़ू थी शहे मशरक़ैन को, मुड़ मुड़ के देखता रहे बेटा हुसैन को, और इसने जिहाद जैसे ही शब्बीर से मिला, तारीकियां मिटाने को सूरज निकल पड़ा, तारीकियां मिटाने को सूरज निकल पड़ा, और सूरज बढ़ा तो जुल्म के साये सिमट गए, अकबर की राह से खसो खाशाक हट गए, घोड़े के सुम से खाक के जर्रे लिपट गए, आदा के चेहरे गर्द से मक्तल की अट गए, आदा के चेहरे गर्द से मक्तल की अट गए। और यहां से मैंने थोड़ा सा एक नया रंग लेने की कोशिश की है कि अकबर रुके तो धूल का तूफान कुछ थमा, अकबर रुके तो धूल का तूफान कुछ थमा, थी दूर फिर भी बोल उठी नहरे अलकमा, थी दूर फिर भी बोल उठी नहरे अलकमा। सुनिए अलकमा की जबान से कि दरिया कैसे तारीफ कर रहा है तेली अकबर की, कि वो आ गया है जिसकी निगाहें रजस पढ़े, मिजगा से बात करता है आंखें रजस पढ़े, माथे पे पड़ने वाली लकीरें रजस पढ़े, जो माने हैं सवारी वो जुल्फे रजस पढ़े, जो माने हैं समारी वो जुल्फे रजस पढ़े, मैदान में पढ़ रहा है जो शेरे जमा रजस, अहले अरब ने ऐसी सुनी है कहाँ रजस, कहती है जुल्फ राज दुलारा नबी का है, अबरू के बल ये कहते हैं पोता अली का है, हर चंद उस पे गलबा बहुत तशनगी का है, कहते हैं खुश खोट के दरिया इसी का है, कहते हैं खुश खोट के दरिया इसी का है। और यूं तो रजस की कोई जरूरत न थी उन्हें, यूं तो रजस की कोई जरूरत न थी उन्हें, मैदान की रस्म थी तो निभाना पड़ी उन्हें, मैदान की रस्म थी, यूं तो रजस की कोई जरूरत न थी उन्हें, मैदान की रस्म थी तो निभाना पड़ी उन्हें। अब बोले बोले कि नाना साहिबे मेराज है मेरा, जो सर पे था अली के वही ताज है मेरा, दुनिया की वुसअतों से परे राज है मेरा, दुनिया की वुसअतों से परे राज है मेरा, हातिम का जैसा हर सखी मोहताज है मेरा, हातिम का जैसा हर सखी मोहताज है मेरा, हम हाशमी हैं यूं भी सखावत दिखाते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं, हम हाशमी हैं यूं भी सखावत दिखाते हैं, हम हाशमी हैं यूं भी सखावत दिखाते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। और हूँ नायबे रसूल का फर्जंद लो ये जान, इस बंद के लिए आपकी तवज्जो का तालिब हूँ कि हूँ, आप ऐसा बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच पढ़ते हुए। खुदा आपकी समातों को ताजगी बख्शे, खुदा आपकी समातों को और हुसैनियत से करीब करे कि हूँ नायबे रसूल का फर्जंद लो ये जान, सुन सुन के जंग बद्र के किस्से हुआ जवान, बचपन से सुनता आया हूँ खैबर की दास्तान, बचपन से सुनता आया हूँ खैबर की दास्तान, मेरे लिए खिलौने रहे तीर और कमान, मेरे लिए खिलौने रहे तीर और कमान। बैत नदा फरमाए कि लगता नहीं हजारों से लाखों से डर मुझे, अब्बास ने सिखाए है फौजी हुनर मुझे। हूँ नायबे रसूल का फर्जंद लो ये जान, सुन सुन के जंग बद्र के किस्से हुआ जवान, बचपन से सुनता आया हूँ खैबर की दास्तान, मेरे लिए खिलौने रहे तीर और कमान, लगता नहीं हजारों से लाखों से डर मुझे,
अब्बास ने सिखाए हैं फौजी हुनर मुझे, पढ़कर रजत अली हुए अकबर जो महवे जंग, मक्तल में छाया दूर तलक सिर्फ खून का रंग। पढ़कर रजत हुए अली अकबर जो महवे जंग, मक्तल में छाया दूर तलक सिर्फ खून का रंग। जुल्मों सितम के वास्ते दुनिया हुई जो तंग, मुंह को छिपा के भागे वो बनते थे जो दबंग। मुंह को छिपा के भागे वो बनते थे जो दबंग। अकबर ने रन्ने वार अली के दिखाए हैं, घबरा के जिब्राइल ने फिर पर बचाए हैं। अकबर ने रन्ने वार अली के दिखाए हैं, घबरा के जिब्राइल ने फिर पर बचाए हैं। कि मैसूर फौज शाम में था यूं वो खुश खिसाल, मैसूर फौज शाम में था यूं वो खुश खिसाल, जैसे कि भेड़ियों में घिरा हो कोई ग़िज़ाल, जैसे कि भेड़ियों में घिरा हो कोई ग़िज़ाल। आदा पे टूटा जब बनी हाशिम का नौनिहाल, कितनों के हाथ से गिरी शमशीर और ढाल, कितनों के हाथ से गिरी शमशीर और ढाल। और बैठ नारा फरमाए कि अकबर ने बढ़ के जब सफ़े आदा तबाह की, अकबर ने बढ़ के जब सफ़े आदा तबाह की, आने लगी नजफ से सदा वाह वाह की, आने लगी नजफ से सदा वाह वाह की। अकबर ने बढ़ के जब सफ़े आदा तबाह की, आने लगी नजफ से सदा वाह वाह की। और ये भी बंद मुलाजा फरमाइएगा कि पोता अली का रन में दिखाता था अपने वार, भगदड़ मची थी फौज में आदा थे बेकरार, जाए पनाह ढूंढते फिरते थे शहसवार, जाए पनाह ढूंढते फिरते थे शहसवार। खुद शिम्र चाहता था कि हो जाए अब फरार, खुद शिम्र चाहता था कि हो जाए अब फरार, लेकिन दिया ना उसको मुकद्दर ने भागने, दामन पकड़ के रखा था दोज़ख की आग ने, लेकिन दिया ना उसको मुकद्दर ने भागने, दामन पकड़ के रखा था दोज़ख की आग ने। दामन पकड़ के रखा था लेकिन दिया ना उसको मुकद्दर में भागने, दामन पकड़ के रखा था दोज़ख की आग ने। और यहाँ से तलवार के सिलसिले में कुछ बंद मैंने नज़म किए और उसमें तलवार जो है दुश्मनों की ज़बान से तारीफ सुनिएगा, मुलादा फरमाइएगा कि अकबर के वार से थे यूं सहमे हुए उदू, हिम्मत न थी किसी में करे जंग दू बदू, तो राम मच गया था जो मैदान में चारसू, आपस में कर रहे थे सितमगर ये गुफ्तगू, आपस में कर रहे थे सितमगर ये गुफ्तगू। हमने तो ये सुना था कि सरवर के पास है, क्या जुल्फ़िकार हैदरी अकबर के पास है। अकबर के बाद से थे यूं सहमे हुए उदू, हिम्मत न थी किसी में करे जंग दू बदू, तो राम मच गया था जो मैदान में चारसू, आपस में कर रहे थे सितमगर ये गुफ्तगू। हमने तो ये सुना था कि सरवर के पास है, क्या जुल्फ़िकार हैदरी अकबर के पास है, क्या जुल्फ़िकार हैदरी अकबर के पास है। अब दुश्मन तारीफ कर रहा है कि देखो तो लग रहा है कि शाखे गुलाब है, देखो तो लग रहा है कि शाखे गुलाब है, यूं चल रही है जैसे खुदा का अजाब है, यूं चल रही है जैसे खुदा का अजाब है। और इसके सबब ही फौज का खाना खराब है, जो मर चुके हैं उनमें भी एक इस्तराब है, जो मर चुके हैं उनमें भी इस्तराब। बैठ नारा फरमाए कि कोशिश यही है तेग की धड़ तो उधर गिरे, कोशिश यही है तेग की धड़ तो उधर गिरे, हर एक लई का कदमों में अकबर के सर गिरे। कोशिश यही है तेग की धड़ तो उधर गिरे,
हर एक नई का कदमों में अकबर के सर गिरे, और जाए पनाह मिलती नहीं है सिपाह को, गर्दन बचे तो कोई बचाए कुलाह को। जाए पनाह मिलती नहीं है सिपाह को, गर्दन बचे तो कोई बचाए कुलाह को। पैगाम दे रही है हर एक रूह सियाह को, आई हूं करबला में मिटाने गुनाह को, आई हूं करबला में मिटाने गुनाह को। और शोरे सितम में अमन का एक साज है ये तेग, शोरे सितम में अमन का एक साज है ये तेग, इंसानियत परस्तों की आवाज है ये तेग, इंसानियत परस्तों की आवाज है ये तेग। वो तेग जो तेग हक परस्तों की पहचान बन गई, वो तेग जो मुहाफिज कुरान बन गई, अहले सितम की मौत का सामान बन गई, करबो बला में आदिल का मीज़ान बन गई, करबो बला में आदिल का मीज़ान बन गई। और दादा की तरह काटा है पुश्तों को बीच से, दादा की तरह काटा है पुश्तों को बीच से। जिसको ना हो यकीन वो लाशों को तोड़ ले, जिसको ना हो यकीन वो लाशों को तोड़ ले। हज़रत मुलादा फरमाए कि निकली न्याम से तो वो एक पल रुकी न थी, प्यासी थी 3 रोज की फिर भी थकी न थी। पाबंदी उसकी नजरों पे कोई लगी न थी, पाबंदी उसकी नजरों पे कोई लगी न थी। दरिया की सिमत तेग मगर देखती न थी, दरिया की सिमत तेग मगर देखती न थी, दरिया की सिमत तेग मगर देखती न थी। और मुश्ताक थी फुरात कि अकबर इधर भी आए, दरिया लहू का उसके बराबर में वो बहाए। मुश्ताक थी फुरात कि अकबर इधर भी आए, दरिया लहू का उसके बराबर में वो बिछाएं। अब यहां से सुनिएगा जरा दरिया के बारे में 2 पन मुलादा फरमाए कि दरिया दुआएं मांग रहा था बेइख्तियार, आ जाए इस तरफ अली अकबर मिले करार। दरिया दुआएं मांग रहा था दरिया दुआएं मांग रहा था बेइख्तियार, आ जाए इस तरफ अली अकबर मिले करार। और दरिया की सिमत बढ़ने लगा जब वो राहवार, दरिया की सिमत बढ़ने लगा जब वो राहवार। अकबर ने रोक कर कहा कानों में एक बार, बैत मुलादा फरमाए कि अकबर ने रोक कर कहा कानों में एक बार, तोहफा है हक का साहिब एहसास के लिए, दरिया बना है हजरत अब्बास के लिए। दरिया दुआएं मांग रहा था बेइख्तियार, आ जाए इस तरफ अली अकबर मिले करार। दरिया की सिमत बढ़ने लगा जब वो राहवार, अकबर ने रोक कर कहा कानों में एक बार, तोहफा है हक का साहिब एहसास के लिए, दरिया बना है हजरत अब्बास के लिए। अकबर की बात सुन के रुका अस्पे बावफा, अकबर की बात सुन के रुका अस्पे बावफा। फिर बर्क बन के दौड़ पड़ा सूए मैसरा, फिर बर्क बन के दौड़ पड़ा सूए मैसरा। फिर मैमने की सिमत वो रहवार मुड़ गया, कुछ देर बाद कल्ब में लश्कर के जा घुसा, कुछ देर बाद कल्ब में लश्कर के जा घुसा। और भागे बचा के जान गरा डील पहलवा, भागे बचा के जान गरा डील पहलवा। कहते थे भागते हुए फर्रार अलमा, कहते थे भागते हुए फर्रार अलमा। और यहाँ से मुलादा फरमाए घोड़े की तारीफ में कुछ अशार रहे, कुछ बन है। और मैं बच्चों को लिए बता दूं कि हजरत अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब था। मुलादा फरमाए कि रन्ने उकाब दौड़ रहा था सभी से तेज। देखिएगा रफ्तार नापने के लिए 2 ही पैमाने हैं, साउंड या लाइट। मुलादा फरमाइएगा कि रन्ने उकाब दौड़ रहा था सभी से तेज, आवाज से ज्यादा कभी रोशनी से तेज। रन्ने उकाब दौड़ रहा था सभी से तेज, आवाज से ज्यादा कभी रोशनी से तेज। और रफ्तार कर दी मौत की यूं जिंदगी से तेज, रफ्तार कर दी मौत की यूं जिंदगी से तेज। उस वक्त बन गई थी कनौती छुरी से तेज, उस वक्त बन गई थी कनौती छुरी से तेज। बंद बैत मुलादा फरमाए
कि दुलदुल ने जो दिखाई उसी राह पर गया, दुलदुल ने जो दिखाई उसी राह पर गया, जो भागते थे उनका ताक़ुब नहीं किया, जो भागते थे उनका ताक़ुब नहीं किया। अब हज़रत यहाँ से मैंने घोड़े की तारीफ, हज़रत अकबर के घोड़े की तारीफ के लिए दुलजना को मुंतखब किया है। दुलजना जो एक घोड़े की सिफतों से वाकिफ है वो क्या कह रहा है, अंदाजा फरमाइएगा। ये मेरा अपना ख्याल है कि शब्बीर के करीब टहलता है दुलजना, अकबर के राहवार को तकता है दुलजना। शब्बीर के करीब टहलता है दुलजना, अकबर के राहवार को तकता है दुलजना, तारीफ चाल ढाल की करता है दुलजना, और गर्दन उठा के फख्र से कहता है दुलजना, गर्दन उठा के फख्र से कहता है दुलजना। अकबर का अस्प यूं है जमीने इराक पर, मेराज में रसूल हो जैसे बुराक पर। अकबर का अस्प यूं है जमीने बुराक पर, जमीने इराक पर। गर्दन शब्बीर के करीब टहलता है दुलजना, अकबर के राहवार को तकता है दुलजना, तारीफ चाल ढाल की करता है दुलजना, गर्दन उठा के फख्र से कहता है दुलजना। अकबर का अस्प यूं है जमीने इराक पर, मेराज में रसूल हो जैसे बुराक पर। और ये भी सुनिएगा कि कह रहा दुलजना कि यूं है लिए शबी है रिसालत में आपको, यूं है लिए शबी है रिसालत में आपको, जैसे कि हो उठाए खुदा की किताब को, जैसे कि हो उठाए खुदा की किताब को। इस बात का ख्याल है हरदम मुखाब को, पहुंचे कोई गजंग न शह के गुलाब को, पहुंचे कोई गजंग न शह के गुलाब को। अब पटके हैं उसने सुम तो लगी बर्क कौन ने, पटके हैं उसने सुम तो लगी बर्क कौन ने। निकला है आज कसरे यजीदी कुरान में, निकला है आज कसरे यजीदी कुरान में। कि था अस्पे बावफा वो इशारों पे चलता था, अहले सितम को अपने सुओं से कुचलता था, आदा की सबको चीर के जब जब निकलता था। सुनिएगा, क्या आदा की सबको चीर के जब जब निकलता था, मुंह से ये जुलजनाह के जुमला निकलता था, मुंह से ये जुलजनाह के जुमला निकलता था। राकिब है कौन नाज तू इस पर जरूर कर, राकिब है कौन नाज तू इस पर जरूर कर, तुझ पर गुरूर जश्ता है खुद पर गुरूर कर। साथ पे बावफा वो इशारों पे चलता था, अहले सितम को अपने सुमों से कुचलता था, आधा की सबको चीर के जब जब निकलता था, मुंह से ये जुलजनाह के जुमला निकलता था। राकिब है कौन नाज तू इस पर जरूर कर, तुझ पर गुरूर जश्ता है खुद पर गुरूर कर। और फिर उड़ चला उकाब भी बेखौफ बेखतर, अकबर भी वार करने लगे नस्ल देखकर, अकबर भी वार करने लगे, कि अकबर भी वार करने लगे नस्ल देखकर, जाने बचा न पाए मगर बानिया ने शर, मोमिन किसी की नस्ल में आया नहीं नजर। जाने बचा न पाए मगर बानिया ने शर, मोमिन किसी की नस्ल में आया नहीं नजर। और बाजार गर्म मौत का बेदरेग है, बाजार गर्म मौत का बेदरेग है, पी जाएगी लहू कि ये प्यासे की तेग है, पी जाएगी लहू। अमलादा फरमाए कि शब्बीर के पिसर का वो हमला के आला हजर, शब्बीर के पिसर का जंग लगा फरमाने के लिए अकबर की कि शब्बीर के पिसर का वो हमला के आला हजर, मसरूर हो रहे थे पहलवान भाग कर, जिंदों का जिक्र क्या है वो दौड़े इधर उधर। चौथे मिसरे के तवज्जो चाहूंगा कि जिंदों का जिक्र क्या है वो दौड़े इधर उधर, मकतूल भागने लगे हाथों में लेके सर। शब्बीर के पिसर का वो हमला के अल हजर, मसरूर हो रहे थे पहलवान भागकर, जिंदों का जिक्र क्या है वो दौड़े इधर उधर, मकतूल भागने लगे हाथों मिले के सर।
मकतूल भागने लगे हाथों में लेके सर। बोला ये शिम्र शेर का हर वार सख्त है, बोला ये शिम्र शेर का हर वार सख्त है, अब मक्र से फरेब से हमले का वक्त है। और हम शक्ल मुस्तफा थे इधर महवे कारदार, उस सिमत साजिशों में थे मसरूफ नाबकार। अकबर को घेरने लगे दुश्मन कई हजार, नागाह एक सिना हुई सीने के आर पार, नागाह एक सिना हुई सीने के आर पार। अहले हरम पे एक कयामत गुजर गई, बर्छी की नोक माँ के जिगर में उतर गई, बर्छी की नोक माँ के जिगर में उतर गई। और था सख्त इम्तिहान शहे तशनकाम का, देते जवाब कैसे पितर के सलाम का। आंखों ने साथ छोड़ दिया था इमाम का, रास्ता दिखाई देता न था एक गाम का। शब्बीर राह ढूंढते रन की तरफ चले, बेटे का बाजू थामने चाहे नजब चले, बेटे का बाजू थामने चाहे नजब चले। और तय करके मंजिलें वो कड़े इम्तिहान की, शब्बीर पहुंचे लाश पे कड़ियल जवान की। आंखों से अश्क जारी हुए आसमान की, रफ्तार जैसे थम गई सारे जहान की। दुनिया में इससे बढ़ के कोई और गम नहीं, बेटे की लाश वज़न से खैबर में कम नहीं, बेटे की लाश वज़न खैबर से कम नहीं। मुलाहिज़ा फरमाए कि लाशें बहुत उठाई शहे मशरक़ैन ने, लाशें बहुत उठाई शहे मशरक़ैन ने, इस बार साथ छोड़ दिया दिल के चैन ने। बाहों में दम जो तोड़ दिया नूर ऐन ने, बेटे की लाश रख दी जमीन पर हुसैन ने, बेटे की लाश रख दी जमीन पर हुसैन ने। और पहले पहल हरम पे मुसीबत की आई है, बच्चों ने मिलके लाश जमा की उठाई है, बच्चों ने मिलके लाश जमा की उठाई है। और बच्चे जब उनकी लाश को खेमे में लाए हैं, बच्चे जब उनकी लाश को खेमे में लाए हैं, सीने को अपने हाथ से अकबर दबाए हैं। अकबर ने मर के भी यूं फराइज निभाए हैं, बर्छी का जख्म माँ की नजर से छिपाए हैं। अकबर ने मर के यूं भी फराइज निभाए हैं, बर्छी का जख्म माँ की नजर से छुपाए हैं। मुमकिन नहीं जहां में कोई ऐसा लाल हो, मरने के बाद भी जिसे माँ का ख्याल हो। मुमकिन नहीं जहां में कोई ऐसा लाल हो, मरने के बाद भी जिसे माँ का ख्याल हो। और लैला को पहले जुल्म ने रोने नहीं दिया, दामन को आंसुओं से भिगोने नहीं दिया, फिर उसके बाद चांद ने सोने नहीं दिया, गाफिल पिसर की याद से होने नहीं दिया। घर लौट कर भी खाक पे बैठी रही वो माँ, ताउम्र चांद देख के रोती रही वो माँ, ताउम्र चांद देख के रोती रही वो माँ। लैला के वास्ते कभी उभरा ना आफताब, आंखों में नूर बाकी रहा और न कोई ख्वाब। गुलशन में देखा जब कोई हंसता हुआ गुलाब, बाहों में बाहें डाल के रोने लगी रबाब। बाहों में गुलशन में देखा जब कोई हंसता हुआ गुलाब, बाहों में बाहें डाल के रोने लगी रबाब। बेटे को याद कौन से पल में किया नहीं, जी भर के एक बार भी पानी पिया नहीं। बेटे को याद कौन से पल में किया नहीं, जी भर के एक बार भी पानी पिया नहीं। नैना ये बोली खून की बरसात हो गई, वो दोपहर तो मेरे लिए रात हो गई। लैला ये बोली खून की बरसात हो गई, वो दोपहर तो मेरे लिए रात हो गई। बैत के तालिबों को मगर मात हो गई, गेटी पे चांद तारों की मोहतात हो गई। और चमकेंगे हश्र तक बनी हाशिम के माहताब, उनका करे जो जिक्र मिलेगा उसे सवाब, उनका करे जो जिक्र मिलेगा उसे सवाब। आखिर में दुआया तीन चार बंद मुलाजा फरमाए कि या रब मेरे भी लब पे हमेशा ये जिक्र हो,
किरदार मेरा पाक हो, दिल भी पवित्र हो, मजलूमियत नवाजी का शेरों में इत्र हो, जो जुल्म का शिकार है उन सब की फिक्र हो। मुस्लिम वही है जिसको शहादत पे नाज है, काफिर है जिसको जुल्म पे दहशत पे नाज है। 14 चिराग जलते हैं रहमत के साए में, कुछ लोग अब भी बैठे हैं दहशत के साए में। कर दे खुदा तो उनको इमामत के साए में, कुरान और रसूल की इतरत के साए में। जुल्म सितम का राज जमाने से दूर हो, अपने इमाम असर का जल्दी ज़हूर हो, अपने इमाम असर का जल्दी ज़हूर हो। शमसी पे मेहरबान हो अली और तेरे रसूल, इस पर करे निगाह करम, ए खुदा बतूल। शमसी पे मेहरबान हो अली और तेरे रसूल, इस पर करे निगाह करम, ए खुदा बतूल। मुश्किल से हैं समेटे अकीदत के चंद फूल, ये पहला मरसिया है इसे कर ले तू कबूल, ये पहला मरसिया है इसे कर ले तू कबूल। मेरे गुनाह जितने हैं 11 मुआफ हूँ, किरदार पर जो दाग हैं सारे वो साफ हूँ। एक मरतबा और सूरह फातिहा की गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के कौकब कद्र मिर्जा सज्जाद अली मिर्जा इब्ने मेहर कद्र जाहिद अली मिर्जा के नाम पढ़ने की ज़हमत।